Okay, so we are going to solve some questions related to companies like Google, Facebook, Apple, VMware. Okay, now the first question, let's read the first question. It is given that you are having an array of size n having non-negative integers h1, h2 up till hn, where each represents a point at coordinate I, hi. Okay, there are n vertical lines drawn such that the two endpoints of line I are at I, hi and I, 0. Okay, so these are the two coordinates of these lines. You have to write a program to find two lines which together with x-axis forms the container such that the container contains the most water. So also there is a note given that you may not slant the container and n is at least 2. Okay, so this is a question of maximization. You have to find the container which will contain the most water. So how are you going to find the container which will have the most water? You have to find the maximum area. Okay, and for that you have to find the optimal height and width of that container. So this is the crux of that question. Okay, now second question is, given an array of integer citations where citations I is the number of citations a researcher received for the ith paper and the citations is sorted in an ascending order, you have to return compute the researcher's H index. Now what do you understand by citations? The best example for that will be, you can just search something on Wikipedia. Okay, now Wikipedia have a bibliography at the end of the page. Okay, bibliography or references might be written there. Now for example, you searched for binary search. Okay, and now binary search is also known as half interval search or logarithmic search. Okay, now there might be some number written there, like for example 1 is written, comma 2 is written. So these are the sources from where these definitions have been taken from. Okay, so if the user wants to read more in detail about the definitions, they can just click on these numbers and they will be redirected to that reference, the source. Okay, from where the information has been cited, and you can just go on this source and read more about it. Okay, so this is what we understand by citations, and you can read more about it now. But in this question we have to find the H index. Okay, now what is a H index? A scientist has an index H if H of their n papers have at least H citations each and the other n minus H papers have no more than H citations each. And if you are having several possible values for H, the maximum one will be taken as the H index. Okay, for example, the first input is written as 0, 1, 3, 5, 6. Okay, so now H index cannot be 6. Why? Because the input size is 5. So the definition will be, so it cannot be 6. Okay, because you are not going to fulfill the definition. Now let's take it 5. अब 5 का मतलब ये होगा that scientist will have H equals to 5 if 5 of their 5 papers have at least 5 citations each. Okay, but यहाँ पर सिर्फ 2 ही papers हैं जिसकी citation 5 या 5 से ज़्यादा है, so 5 तो नहीं होगी. Now अब एक काम करते हैं, 3 लेके देखते हैं. Okay, the moment you take 3, so a scientist has an index 3 if 3 of their 5 papers has at least 3 citations each. So yes, यहाँ पे ऐसे 3 papers हैं जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा citation count है, and the other n minus h papers, that is 5 minus 3 is 2, they have no more than h citations each. मतलब इन दोनों की 0 और 1 है जो कि 3 से तो कम ही है. So इसका आंसर है 3. इसलिए this is the reason it's written 3 here. Okay, सिमिलरली जो सेकंड इनपुट आउटपुट केस है जिसमें 1 to 100 लिखा हुआ है, तो 100 तो हो नहीं सकता,
बिकॉज 100 पेपर्स ही नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्टिमल आंसर हो जाएगा 2, बिकॉज कम से कम वहाँ पे 2 पेपर्स ऐसे हैं जिसकी साइटेशन 2 या 2 से ज़्यादा है। अब इंटरेस्टिंग केस ये है, द मोमेंट यू टेक 3, okay, interesting case is the third one where it's written that the input will have 1, 5, 6, 7, 8. अब यहाँ पर इनपुट में जो साइज़ है वो है 5, ओके, तो ना तो 6 होगा, ना तो 7 होगा, ना तो 8 होगा। नाउ योर पॉइंट विल बी दैट मैम लेट्स टेक एच इंडेक्स एज 5, ओके। अब 5 हो नहीं सकता बिकॉज 5 पेपर्स ऐसे नहीं हैं जिसके 5 या 5 से ज़्यादा है, ठीक है, साइटेशन। यहाँ पर सिर्फ ऐसे 4 पेपर है, ओके। तो इसका जो आंसर है वो होगा 4, बिकॉज वी हैव 4 पेपर्स हियर विच विल हैव इंडेक्स ग्रेटर देन 4, which is 5, 6, 7, 8. Okay, so it is not necessary that the value of H index is always going to lie in the array. Okay, so ये है question. Now, third question is that you are given an array people where people I is the weight of the ith person and an infinite number of boats where each boat can carry a maximum weight of limit. Each boat carries at most 2 people at the same time provided the sum of the weight of those people is at most limit and we have to return the minimum number of boats so that we can save every given person. Okay, अब इस क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट जो इनपुट है उसमें दिया हुआ है 1 और 2, सो एक पर्सन का वेट है 1, सेकंड का है 2, लिमिट कितनी दी हुई है 3, सो हम एक ही बोट भेज सकते हैं जिसमें 1 और 2 दोनों को हम वी कैन सेव देम, ओके, हम दोनों को बिठा सकते हैं उसमें क्योंकि लिमिट 3 है, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड इनपुट जो है वो है 3, 2, 2, 1, ठीक है। इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट है 3, ठीक है। इसका आउटपुट है 3, कैसे, पहली बोट में मान लो आपने 3 को भेज दिया, सेकेंड बोट में आपने 2 और 1 को भेज दिया एंड थर्ड बोट में आपने 2 को भेजा है, बिकॉज यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट क्रॉसिंग द लिमिट एट एनी टाइम, ओके। एनीवेज थर्ड टेस्ट केस क्या है, 3, 5, 3, 4 और लिमिट है 5, ठीक है। तो पहले वाले में क्या हो जाएगा, आप 5 को भेज पाएंगे, दूसरे वाले में आप 3 को भेज पाएंगे, देन आप फिर से 3 को भेज पाएंगे और 4 को भेज पाएंगे, बाय बिकॉज लिमिट 5 है, सो आप इसमें पेयरिंग नहीं कर पाएंगे एज सच, ठीक है। सो दिस इज दी क्वेश्चन। Now, next you have to figure out whether an array is monotonic or not. उसकी definition भी दी हुई है that an array is monotone increasing if I is less than, if for all I less than equals to j, ai is less than equals to aj, and similarly decreasing की भी definition दी हुई है। तो इसका क्या है, जैसे कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है जो है 1, 2, 2, 3, तो ये मोनोटोन इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ai लेस देन इक्वल्स टू ए जे की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो द सेम गोज फॉर 6, 5, 4, 4, ये मोनोटोन डिक्रीजिंग है। द थर्ड टेस्ट केस जो है 1, 3, 2, ये फॉल्स हो जाएगा, वाई, बिकॉज यहाँ पर तो आपने मोनोटोन इंक्रीजिंग कर दिया और यहाँ पर आपने मोनोटोन डिक्रीजिंग कर दिया, दोनों की दोनों सिचुएशंस एक ही टेस्ट केस में सेटिस्फाई नहीं हो सकते, तो इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अगले टेस्ट केस में है 1, 1, 1 so we can have an array where all the elements are same, so this is going to be monotone, increasing या decreasing दोनों में satisfy हो जाएगा ये, ठीक है। now next you have 1, 2, 4, 5, तो ये हो जाएगा monotone increasing, ठीक है। now next question is you are given an array of integers where you have to return true if and only if it is a valid mountain array, ठीक है। माउंटेन एरे के कुछ कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं। पहला कंस्ट्रेंट ये है कि जो लेंथ हो वो एटलीस्ट 3 हो, ठीक है, तभी हम ऐसा फिगर बना पाएंगे, वी हैव टू बेसिकली फॉर्म ए माउंटेन, ओके। उसके बाद सेकंड कंस्ट्रेंट्स दी हुई हैं, तो अब जैसे पहला इनपुट है उसमें दिया है 2 और 1, ठीक है, तो 2 और 1 पे फॉल्स हो जाएगा, वाई, बिकॉज ए डॉट लेंथ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3, तो एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। सेकंड टेस्ट केस इज 3, 5, 5, तो मतलब आप 3 से स्टार्ट करेंगे और आप ऐसे करके कोई माउंटेन नहीं बनता है, ओके। सो यू आर बेसिकली फॉल्सिफाइंग दी कंस्ट्रेंट नंबर 2, ओके। जो थर्ड टेस्ट केस है उसमें दिया है 0, 3, 2, 1, सो वो कुछ
ऐसे स्टार्ट होगा, then 3, then 2, then 1, right? So this is a valid mountain and इसलिए आउटपुट आ जाएगा ट्रू. So this is the question number 5. Next question is that you have to count the number of prime numbers which are less than a non-negative number n. और इनपुट टेस्ट केस में उन्होंने 10 दिया है, आउटपुट में 4 है. So yes, we have 2, 3, 5, 7 prime numbers which are less than 10. अब इस क्वेश्चन को एक जो करने का तरीका है विच इज़ द स्कूल मेथड, वो ये है कि आप जो लूप चला रहे हैं उसमें n से बार बार आप डिवाइड कर रहे हैं i को, और उस हिसाब से आप देख रहे हैं कि मल्टीपल आ रहा है कि नहीं आ रहा है. ठीक है, बट दिस मेथड इज़ हैविंग ए हाई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का क्रक्स ये है कि इसमें एक मेथड होता है, एक एल्गोरिथम है. एल्गोरिथम इज सिव ऑफ इरेटोस्थेनिस. ठीक है, सिव ऑफ इरेटोस्थेनिस ये कहते हैं इट्स वेरी गुड फॉर फाइंडिंग द प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन ए गिवन नंबर. ओके, तो ये तब यूज़ होता है. इसके अलावा इसके और भी वेरिएंट्स हैं. ये हैव सेगमेंटेड सीव एंड और भी हैं, आप देख सकते हो उसके बारे में. एनीवेज, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड, द मोस्ट एफिशिएंट मेथड करेंटली विच इज़ अवेलेबल टू अस टू फाइंड द काउंट ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन अ गिवन नंबर. ओके, एंड ये वैलिड है कब तक? जब तक वो जो n है वो 10 मिलियन से छोटा है. ठीक है, सो दिस इज़ द सिव ऑफ इरेटोस्थेनिस. सिव ऑफ इरेटोस्थेनिस ये कहता है कि आप एक बुलियन एरे बनाएं. ठीक है, एंड उसमें आप सारे के सारे जो नंबर्स हैं लेस देन दैट नंबर, फॉर एग्जांपल यू हैव 10, आप यहाँ पे लिख दीजिए, एंड दैट टू स्टार्टेड फ्रॉम 2. ओके, सो हियर यू गो. नाउ व्हाट दे डू इज़ दे स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड जो भी 2 के मल्टीपल्स अगर इसमें अवेलेबल हैं, आप उस बुलियन एरे, आपने इनिशियली बुलियन एरे में सबको ट्रू करा हुआ है. ठीक है, सो दे स्टार्ट विद 2 एंड जो भी 2 की मल्टीपल्स अवेलेबल हैं आप उनको कर दोगे फॉल्स. वाई? बिकॉज वो कंपोजिट नंबर्स हो गए, उनके मल्टीपल्स अवेलेबल हैं, तो आप इन सबको कर दोगे क्या? फॉल्स. ठीक है, सिमिलरली ऐसे करके आप 3 के लिए देखोगे, राइट? तो 3 के मल्टीपल यहाँ पे क्या अवेलेबल है? 9, तो आप इसे भी कर दोगे फॉल्स. सिमिलरली आप 4 के लिए देखोगे. ठीक है, तो फिर आप उस हिसाब से ऐसे ऐसे करते जाओगे. जो इसका एंड रिज़ल्ट होगा, एंड रिज़ल्ट में आपके पास केवल वही नंबर्स बचेंगे जिसके मल्टीपल्स नहीं होंगे या फिर जो कि प्राइम नंबर्स होंगे. तो हमारे पास जो एंड रिज़ल्ट हो जाएगा वो होगा 2, 3 और 5, 7. सो ये है हमारा सिव ऑफ इरेटोस्थेनिस. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अ होमवर्क फॉर यू. लास्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड इन गूगल एंड फेसबुक, एप्पल, VMware, VMtronics. सो काफ़ी अच्छी कंपनी से पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो आप इसे करके देखिएगा. ओके, आई विल प्रोवाइड द सोल्यूशन लिंक एज वेल, सो यू कैन चेक आउट द सोल्यूशन देयर. बट जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ अ असाइनमेंट फॉर यू. ओके, थैंक यू.